Hi everyone, welcome back to my channel Smart Learning. This is Vishakha Soni here. Our today's topic is membrane transport or transport across cell membrane. ये आप सभी को पता होगा that cell membrane का function होता है to allow the molecules to pass from one region to another or from inside of the cell to outside or outside to inside. तो ये जो movement होता है उसी को कहा जाता है transport. So that we are going to discuss in detail in this video. There are different types of transport that take place across the cell membrane. Mainly two types क्या होता है movement, passive transport and active transport. Passive means quietly, active means actively. So exactly इसे किस तरह से differentiate कर सकते हैं? Here ATP is involved. If in any transport ATP is not involved, then that transport is known as passive transport. And if ATP is required for the movement or transport of molecule, then it is known as active transport. So passive and active transport में है कुछ नहीं, movement of molecules ही है. But if the movement is taking place from the region of its higher concentration to the region of its lower concentration without any use of ATP or energy, then it is known as passive transport. And if the movement is taking place opposite or against the concentration gradient, that is from lower concentration to higher concentration with the help of ATP or energy, then it is known as active transport. Okay, so there are certain types of passive transport. Passive transport is mainly of three types: osmosis, diffusion and facilitated transport, whereas active transport is of two types: via vesicles or via protein pumps. Via vesicles, it can be of two types: endocytosis and exocytosis. Let's discuss these types one by one. First is simple diffusion, which is a type of passive transport. Simple diffusion is nothing but it is the movement of particles from higher concentration to lower concentration without a protein. The molecules will move from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration. एंड मूवमेंट कब तक होगा? जब तक दोनों जगह पर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाता, मीन्स टिल द इक्विलिब्रियम स्टेज इज रीच्ड, तब तक मूवमेंट होता रहेगा. दिस इज नोन एज सिंपल डिफ्यूजन. सिंपल डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स मोस्टली कौन से मूव करते हुए सिंपल डिफ्यूजन, लाइक लिपिड मॉलिक्यूल्स हुए, जो भी सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट होता है वाया सिंपल डिफ्यूजन. ओके, नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस. Osmosis भी सेम ही है, मूवमेंट फ्रॉम हायर रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. बट ऑस्मोसिस में वी टॉक अबाउट द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. When a water molecule is moving from the region of its higher concentration to the region of its lower concentration, then it is known as osmosis. We are not talking about the solute particles, we are talking about the solvent or water molecule. So that is known as osmosis. नेक्स्ट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. नाम में मीनिंग है फैसिलिटेटेड. डिफ्यूजन मीन्स वही, मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पर मूवमेंट जो होता है दैट इज थ्रू अ फैसिलिटी, विद द हेल्प ऑफ अ फैसिलिटी, और द फैसिलिटी हियर इज कैरियर प्रोटीन. These are the proteins which are integrated into the cell membrane. ये प्रोटीन्स का काम होता है मॉलिक्यूल्स को कैरी करके अदर साइड पर पहुंचाना, गेटवे की तरह एक्ट करते हैं. बट यहाँ पर एनर्जी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. लाइक यहाँ पर ये जो ब्लू मॉलिक्यूल्स है दे आर मोर इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस. So this molecule, when it reaches the cell membrane, it gets attached to the carrier protein like this, and then protein releases the molecule to the other side of the cell, like into the intracellular space. So this is the facilitated diffusion, that is diffusion is taking place with the help of a protein. Okay, this picture will clarify your doubt more that what is the difference between diffusion and facilitated diffusion. एक ही चीज हो रही है, movement of molecule is taking place from the region of its higher concentration to the region of its lower concentration here also. But in diffusion, no protein is involved for the moment. Directly molecules will diffuse through the membrane.
But in facilitated diffusion, the molecules are unable to diffuse directly, so they move across a carrier protein. They need a carrier protein to carry them from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration. Okay, this is the only difference between facilitated diffusion and diffusion. Rest both are the types of passive transport, that is, none of the process needs ATP or energy. Okay, let's move towards active transport. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में फर्स्ट है वाया आयन पंप और प्रोटीन पंप. आयन पंप प्रोटीन पंप ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि इससे में से मूवमेंट होता है आयंस का, इसलिए इट इज नोन एज आयन पंप. एंड प्रोटीन पंप इसलिए कहा है क्योंकि किस में से मूवमेंट होगा? इट्स अ प्रोटीन. Some integrated protein forms the protein pump which allow the molecules or ions to pass through them. Mostly ये ions के लिए होता है. Ions का movement directly diffusion से नहीं हो सकता. They need energy to get transported. क्योंकि ions का balance बनाना against the concentration gradient भी हो सकता है. That is movement from lower concentration to higher concentration भी हो सकता है. इसलिए in this process the ATP is required. It is a part of एक्टिव ट्रांसपोर्ट. डिफरेंट डिफरेंट आयंस के डिफरेंट डिफरेंट पंप होते हैं. जैसे प्रोटॉन पंप होता है जो कि सिर्फ H प्लस आयंस और प्रोटॉन आयंस के मूवमेंट में हेल्प करता है. द मोस्ट abundantly present pump in humans is sodium potassium pump जो कि सोडियम और पोटेशियम आयंस के मूवमेंट में हेल्प करते हैं. सोडियम आयन का मूवमेंट कभी भी अलोन अकेला नहीं होता है, उसके साथ हमेशा पोटेशियम आयंस अगेंस्ट मूव करते हैं. 3:2 का रेशियो होता है कि if 3 molecules of sodium ions are taken, then 2 molecules of potassium ion need to be transported to the opposite side. ये इसका सिंपल सा मैथ्स है. 3 सोडियम आएंगे तो 2 पोटेशियम को जाना पड़ेगा. दिस इज द सिंपल मैथ. दिस विल बी मोर क्लियर टू यू बाय दिस फर्दर एनिमेशन. दिस इज द पंप. इट टेक्स 3 सोडियम आयंस, एटीपी के हेल्प से ओपन होता है, सोडियम आयंस रिलीज होते हैं, इट टेक्स पोटेशियम आयन एंड रिलीजेस टू द इनर साइड. सो दिस इज हाउ दिस पंप वर्क्स. सोडियम आयंस को लेगा, एटीपी अटैच होगा तभी ओपन होगा, इट विल रिलीज द सोडियम आयंस टू द अदर साइड, इट विल टेक द पोटेशियम आयन एंड उसको अंदर लेके आ जाएगा. इस तरह से इस पंप का मूवमेंट होता है. ओके, नेक्स्ट इज वाया वेसिकल्स. वेसिकल्स के थ्रू टू टाइप के प्रोसेस होते हैं, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस. वेसिकल, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ वेसिकल? वेसिकल इज नथिंग बट इट्स अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. एक मेम्ब्रेन बाउंड राउंड सा ऑर्गेनल होता है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है. दिस इज अ वेसिकल जो कि कोई ना कोई किसी न किसी मॉलिक्यूल को कंटेन करता है. ओके, इट कंटेन सर्टेन मॉलिक्यूल एंड ट्रांसपोर्ट्स देम. ठीक है, सो ये होते हैं वेसिकल. इसकी मेम्ब्रेन जो है वो सेल मेम्ब्रेन से ही डिराइव होकर बनती है क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन से ही बर्ड ऑफ होकर बनता है. ओके, सो दीज आर द वेसिकल्स. अभी एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस क्या है? if a cell is taking a particular molecule from outside to inside, outside से inside कोई molecule या कोई डेब्रीज है उसको कलेक्ट करना है, तो वो कैसे करता है? जैसे ये पार्टिकल आता है उसके आसपास ये सूडोपोडिया लाइक एक्सटेंशंस फॉर्म करता है. दिस सूडोपोडिया एक्सटेंशंस विल फ्यूज टुगेदर एंड इट विल बर्ड ऑफ and form a vesicle. This vesicle is now containing the molecule and the molecule is transported into the cell. Right? So this is known as endocytosis. जब external molecule को internalize किया जाता है तो it is known as endocytosis. Whereas inner particles को अगर outside की तरफ निकाला जाता है तो it is known as exocytosis. वो भी वाया वेसिकल ही होगा. बाहर जाने वाले पार्टिकल को वेसिकल में पैक किया जाता है. दिस वेसिकल देन फ्यूजेस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देन इट disintegrates through a region जहाँ से particles जो है वो release हो जाते हैं. This will be more clear from this animation. You can see these are the particles which need to be internalized. So ये cell membrane ने outgrowth बना के vesicle बनाया and this vesicle will now be transported to its target region. Okay, whereas in exocytosis, see vesicle आया, जुड़ा membrane से and तुरंत particles release हो गए, उसका वो region disintegrate हुआ and particles release हो गए. So that is exocytosis. एंडोसाइटोसिस जो होता है वो मेनली 3 टाइप्स का होता है.
phagocytosis, पिनोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस. इफ एंडोसाइटोसिस में कोई सॉलिड मॉलिक्यूल का इंटरनलाइजेशन इन्वॉल्व है लाइक सेल डेब्रिस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देन इट इज नोन एज phagocytosis. जनरल लैंग्वेज में इसे सेल ईटिंग भी कहा जाता है. लेकिन अगर इंटरनलाइजेशन में कोई एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड इन्वॉल्व है, जैसे कि वाटर का अगर इंटरनलाइजेशन करना है, तो दैट इज नोन एज पिनोसाइटोसिस, या जनरल टर्म्स में इसे सेल ड्रिंकिंग भी कहा जाता है. ओके. रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि डायरेक्टली कहीं से भी इंटरनलाइज नहीं किए जाते, जैसे कि मेटाबोलाइट्स हुए या फिर हार्मोन्स हुए. वो मेम्ब्रेन के ऊपर उनके पर्टिकुलर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं से अटैच होकर वो इंटरनलाइज किए जा सकते हैं. तो व्हाट हैपेंस इज कि इन रिसेप्टर से सबसे पहले ये मेटाबोलाइट्स या हार्मोन्स आके अटैच होते हैं. ये रीजन जहाँ पर ये आके अटैच होते हैं वहाँ पर कुछ प्रोटीन्स आके इस रीजन को कोट कर देते हैं. ये पिट अप कोटेड पिट हो जाता है. ठीक है. यहाँ पर ये अटैच्ड है, ये इन पिट, ये कोटिंग की वजह से यहाँ पर सिग्नल मिलता है कि ये सूडोपोडिया फॉर्मेशन करे, आउटग्रोथ्स बनाए एंड देन इसको वेसिकल में कन्वर्ट कर दे. जैसे ये वेसिकल में कन्वर्ट होगा तो अंदर रिसेप्टर के साथ जो मॉलिक्यूल है वो अंदर आ जाएगा, एंड दिस वेसिकल विल बी कोटेड बाय द कोट प्रोटीन. दिस इज द कोटेड वेसिकल एंड दिस कोटेड वेसिकल विल देन बी ट्रांसपोर्टेड टू इट्स टारगेट रीजन. तो यहाँ पर रिसेप्टर का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है इन एंडोसाइटोसिस के लिए, क्योंकि उसी के थ्रू अंदर आएगा, लॉक एंड की मैकेनिज्म जैसा. ओके. सो इसलिए इसको कहा जाता है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस. Okay, so these are the different types of movement through which the molecules move in and out of the cell. यहाँ पर plasma membrane का सबसे बड़ा involvement है, as you have seen, right? Okay, so time for a fun fact. Do you know which is the fastest cell transport method among all? हमने इतने सारे transport methods पढ़े, passive, active. Passive में हमने types पढ़े, diffusion, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. एक्टिव में हमने टाइप्स पढ़े वाया वेसिकल और आयन पंप्स. वेसिकल में एक्सोसाइटोस, एंडोसाइटोस. लेकिन इनमें से फास्टेस्ट मेथड कौन सा है? इफ यू नो द आंसर, वीडियो को तुरंत पॉज करके फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए दैट व्हाट इज द आंसर. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट सबसे फास्टेस्ट मेथड है. नाउ व्हाई? इसे हम सारे मेथड से कंपेयर करते हैं. अगर हम डिफ्यूजन ऑस्मोसिस से कंपेयर करें तो ये वहाँ पर मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली खुद ब खुद मूव कर रहे थे. दे वर नॉट प्रोवाइडेड विथ एनी हेल्प और असिस्टेंस. बट फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में कैरियर प्रोटीन्स होते जो कि हेल्प कर रहे हैं मॉलिक्यूल को. ओके. डायरेक्टली मॉलिक्यूल को डिफ्यूज नहीं होना है, प्रोटीन लेगा तुरंत दे देगा, अंदर लेगा तुरंत दे देगा. उनको पूरा इस लिपिड्स की लेयर में से पास होने की जरूरत नहीं है, राइट? सो इसलिए ये फास्टर मैकेनिज्म हो जाता है एज कंपेयर टू डिफ्यूजन. ओके. अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हम इसे कंपेयर करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन. अगर कंसंट्रेशन के अगेंस्ट जा रहे हैं तो बट ऑब्वियस वहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा. वेर इज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होता है, मीन्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. सो इट इज़ नेचुरली सपोर्टेड ऑल्सो. तो इस नेचुरल सपोर्ट की वजह से ये जो होता है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी फास्टर मेथड होता है. ओके. सो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए, एंड इफ यू वांट टू स्टडी मोर अबाउट सर्टेन टॉपिक्स, these topics, then subscribe to my channel and share this video with your friends. Okay. Okay, thank you so much. Bye bye, happy learning.